A very good afternoon to one and all present here. On behalf of Madicap's Innovation and Incubation Center and e-sale of Madicap's University, I, Dr. Anjali Soni, welcome all of you in today's webinar on Venture on Capital Funding. First of all, I am pleased to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. D.K. Patnaik, Pro Vice Chancellor Dr. D.K. Pandam, Registrar Dr. Pradyuman Yadav, all the deans, all the head of the department, head of MIIC Dr. Sarita Kansal, head of E-Cell Professor Ramjan Singh, all the faculty members and all the participants. Madcaps is one of the brand names in the arena of technical education and is contributing in making Indore an educational hub. Since July 2000, Medicaps aims at creating an ideal ambience for budding technocrats and helping them to grow like true professionals. In year 2015, we got the approval from UGC to be a self-financed university and admission for same started in 2016. Since then, we have included many courses other than engineering like management, agriculture, pharmacy, design, commerce, science, art, etc. Since we have created our own brand in the Central India, till date more than 12,000 students have been passed out from Medicaps and are working globally, and 7,000 students currently studying in various programs. Now about MIIC. Medicape's Innovation and Incubation Center was established in the year 2018 with the aim of provoking innovation and baking startups. We believe in setting the stage for energetic and aspiring entrepreneurs. We encourage talents, innovators, and opportunity is provided to the potential change makers of the industry, thereby contributing towards a positive change. MIIC supports technical ventures and late-stage innovations. This paves the path for potential business ideas to reach the market. As we all are here to attend a webinar on venture capital funding, we have with us today's speaker, Professor G.K. Sharma. Professor G.K. Sharma is a faculty of management in Medicaps University. He has 6 years teaching experience at UG and PG level. His expertise in entrepreneurship and management, international trade and accountancy and finance. I am so much pleased to invite Professor G.K. Sharma to have insight on venture capital funding. Over to sir. Thank you Over so to much, ma'am. yes, Thank sir. you Okay, thank you. for your kind words, ma'am. Thank you so much. So Welcome, we are sir. all, without wasting any time, let's start our today's session with a few questions on venture capital funding. Whenever we think about venture or startups, we think about capital, means fund. We know that without fund, it is almost impossible to establish or run any business or concern. And for the startups, it is must. कुछ basic questions हैं, like what are venture and venture capital. कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वेंचर क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या है. सो इस टर्म को हमने कई बार सुना है. वेंचर मीन्स a concern or an organization formed to earn profit or formed to provide services or goods to the consumers. So यहाँ वेंचर का मतलब हम
जीके शर्मा सर, मैं इंटरप्ट करूं 2 मिनट? हेलो यस सर। सर, मैं चाह रहा हूं कि आपका कैमरा आप ऑन रखे सर। ओके सर, श्योर। है ना सर? थैंक यू सर। इज इट ओके सर? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ कर लेंगे थोड़ा सा, तो फेस और क्लियर हो जाएगा। हाँ बस ठीक है। राइट ओके सर, राइट राइट। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। So we are on the point वेंचर। वेंचर के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझें कि कोई भी ऐसा कंसर्न जिसको प्रॉफिट के लिए फॉर्म किया जाता है, यानी कि कोई भी बिजनेस जिसको एस्टैब्लिश और रन किया जाता है फॉर द सेक ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और मार्केट में और इकोनॉमी में अपना इम्पोर्टेंस, अपना सपोर्ट देते हैं। यहाँ वेंचर कैपिटल जो हम समझ रहे हैं, ये टर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं, न्यू स्टार्टअप्स के लिए फंड एक बहुत बड़ा इशू होता है। उनके लिए फंड अरेंज करना बहुत एक इनिशियल इशू होता है। जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं उनके लिए फंड कैसे अरेंज हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, फंड की रिक्वायरमेंट क्यों होती हैं, ये कुछ बेसिक्स हम आज देखेंगे। सो वेंचर कैपिटल का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एस्टैब्लिश हुआ है उसके लिए जो उसके फर्दर प्रोसेस के लिए, ऑपरेशन के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। अब जनरली ये जो वेंचर कैपिटल है ये कहाँ से अरेंज होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वेंचर के बारे में भी हम यदि देखें तो risky or daring undertaking or journey, an event that is not or cannot be foreseen, an incident, an accident, chance और contingency, इसको वेंचर कहा जाता है। नॉर्मली वेंचर शब्द के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग दिए हुए हैं, ये कुछ एक आध मीनिंग आपके सामने हैं। इनसे हम समझ सकते हैं कि वेंचर का मतलब होता है रिस्क लेना। जितने भी न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी स्टार्टअप ले रहे हैं या जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके सामने चैलेंज होता है या रिस्क होती है कि किस तरह से वो अपने पूरे एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी कि वेंचर की प्लानिंग करें, उसको किस तरह से स्टैब्लिश करें और रन करें। नाउ वेंचर कैपिटल। Venture capital means funds made available for startup firms and small business with exceptional growth potential. ये जो वेंचर कैपिटल टर्म सुना जाता है ज़्यादातर, ये इसीलिए है कि जो वेंचर हैं, जो कि फर्म फंड प्रोवाइड करती हैं, फंड प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं, बैंक्स होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो फंड को प्रोवाइड करते हैं। तो उन लोगों को, उस ग्रुप को वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। सो हियर वेंचर कैपिटल मींस फंड्स मेड अवेलेबल फॉर स्टार्टअप्स, फर्म्स एंड स्मॉल बिजनेसेस विद एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल। तो ऐसे स्टार्टअप्स जिनके पास फंड नहीं है, जिन्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उन लोगों को फंड का अरेंजमेंट करना, फंड अवेलेबल करवाना, फंड प्रोवाइड करना, ये वेंचर कैपिटलिस्ट का काम होता है। So venture capital is long-term risk capital to finance high technology projects which involve risk but at the same time has strong potential for growth. मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने एक रिस्क ये रहती है कि उस वेंचर में, यानी कि उस फर्म में या उस कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन में फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है या जिसका भी कोई मार्केट नहीं है, या मार्केट में अभी जिसकी स्टार्टिंग नहीं हुई है। सो जो न्यूली फर्म्स होती हैं या न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना एक हाई रिस्क होती है। सो वेंचर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म रिस्क, क्योंकि ये लंबे समय के लिए इन्वेस्ट होता है
वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए जो फंड का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सोच समझकर करना होता है, क्योंकि लमसम अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं. सो वेंचर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म रिस्क capital to finance high technology projects which involve risk but at the same time has strong potential for growth. तो जितना ज्यादा रिस्क होगी उतना ही ज्यादा उन्हें गेन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए कहा जाता है मोर रिस्क मोर गेन. Now SEBI, as we know, State Security Exchange Board of India, SEBI defined venture capital fund in its regulation 1996 as a fund established in the form of a capital or trust which raises money through loans, donations, issue of securities or units as the case may be, and make or proposes to make investment in accordance with the regulations. So definition में ये चीज clear होती है कि venture capital fund जो है वो न्यूली एस्टैब्लिश जो फर्म है या स्टार्टअप्स हैं उन्हें एज लोन या डोनेशन या इशू सिक्योरिटीज जो है यूनिट्स जो हैं इनको प्रोवाइड करके फंड अवेलेबल करवाता है. सो सेबी डिफाइंड हियर एज वेंचर कैपिटल एज द फंड मेड अवेलेबल फॉर द स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स. अभी वेंचर कैपिटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो फंड प्रोवाइडर होते हैं. यहाँ वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब होता है फंड प्रोवाइडर, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है उसे फंड प्रोवाइड करता है. सो वीसी और वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, मीनिंग दैट इट टेक्स द इन्वेस्टर्स कैपिटल एंड इन्वेस्ट it directly in portfolio companies. A VC or venture capitalist only in private companies. ठीक है, ये केवल प्राइवेट कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में या गवर्नमेंट सेक्टर में इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता. This means that once the investments are made, the company cannot be immediately traded on a public exchange. जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो पब्लिक एक्सचेंज के लिए पॉसिबल नहीं होता. सो वीसी टेक्स एन एक्टिव रोल इन मॉनिटरिंग एंड हेल्पिंग द कंपनीज इन इट्स पोर्टफोलियो. कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जिसको वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, नॉर्मली वीसी यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट उस इन्वेस्टेड फंड की मॉनिटरिंग करता है, उसको हेल्प करता है कंपनी को कि डिफरेंट पोर्टफोलियो में वो अपने इन्वेस्टमेंट को अप्लाई कर पाए. VCs or venture capitalists' primary goal is to maximize its financial return by existing investments through a sale or an initial public offering, which is known as IPO. A VC invests to fund the internal growth of companies. VC का मेन काम होता है कि वो कंपनी की यानी कि जो फर्म है उसकी इंटरनल ग्रोथ के लिए वो इन्वेस्ट करता है. तो यहाँ यदि हम इसके कुछ फीचर्स को और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करें तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने हैं. So venture capital has few features like long term investment. It has venture capitalists जो होते हैं वो किसी भी स्टार्टअप में या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइवेट सेक्टर जो फर्म्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनमें जब वो इन्वेस्ट करती है सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है, वो से मोर देन 10 years और अप्रॉक्स 10 years. लैक ऑफ लिक्विडिटी. वेंचर कैपिटलिस्ट जिस फर्म में इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली हाई रिस्क होती है क्योंकि फर्म भी नहीं होती है, मार्केट उनके लिए नया होता है, न्यूली एस्टैब्लिश्ड फर्म होती है या गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड फर्म होती है, और इस तरह की फर्म में कस्टमर और कंज्यूमर एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं होते या पोटेंशियल कस्टमर या कंज्यूमर्स होते हैं. सो लैक ऑफ लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्ट किया गया है अमाउंट, वेंचर कैपिटलिस्ट ने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है करने वाली है, उसका जो रिटर्न है वो बहुत
रेगुलरली या बहुत स्पीड से नहीं रिसीव होता। इसका मतलब जो रिटर्न मिलता है इन्वेस्टेड अमाउंट पर वो बहुत लंबे समय के बाद मिलता है, तो लिक्विडिटी की कमी रहती है, यहाँ लिक्विडिटी की लैकिंग कहलाती है। हाई रिस्क इसलिए क्योंकि काफी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, रिटर्न बहुत कम होता है, और ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए इन्वेस्ट किया गया है वो नया है, मार्केट नया है इसके लिए, तो रिस्क भी उतनी रहती है। हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो सक्सेसफुल हो ना हो, तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है उसका लॉस हो सकता है, तो इसलिए हाई रिस्क बनी रहती है। इसीलिए वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हाई रिस्क और लो रिटर्न का होता है। ये टोटली प्राइवेट इक्विटी होती है। वेंचर कैपिटलिस्ट कभी भी स्टार्टअप्स के लिए या न्यू फर्म्स के लिए या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपेंशन में जा रही है, प्राइवेट सेक्टर की है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर के ही लिए करते हैं, और ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये भी प्राइवेट होते हैं। सो प्राइवेट इक्विटी में ये इन्वेस्ट करते हैं, इसकी जो इक्विटी होती है वो प्राइवेट होती है। इसका मतलब ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ऑनर या एज एन इन्वेस्टर इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये एक तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक के रूप में माने जाते हैं। डिपेंड करता है कि ये उसकी जो सीट है उसकी डिमांड करते हैं या नहीं करते। नाउ इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड कैपिटल गेन्स। तो इक्विटी पार्टिसिपेशन का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इन्वेस्ट किया गया है, वेंचर कैपिटलिस्ट ने जितना भी इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट में वेंचर कैपिटलिस्ट का जो बिजनेस या जो और स्टार्टअप है उसकी जो फंक्शनिंग है, जो उसका ऑपरेशन है, उसमें उनका डायरेक्ट रोल ये डिमांड कर सकते हैं, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका हो सकता है। ठीक है, सो इक्विटी पार्टिसिपेशन मतलब जो पूंजी है स्टार्टअप्स की या वेंचर की जो कैपिटल है उसमें इनका पार्टिसिपेशन माना जाता है। यदि ये फंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में अपना राइट रखते हैं। नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल के कुछ एडवांटेजेस हैं। यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है, यदि गवर्नमेंट से उसे फंड अवेलेबल नहीं हो पाता है, लंबी प्रोसेस होती है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है उन्हें फंड प्रोवाइड करते हैं। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं दैट वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड लार्ज सम ऑफ इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस एक लार्ज सम का किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी न्यूली एस्टैब्लिश्ड फर्म के लिए अवेलेबल हो जाता है। ये इसका एक एडवांटेज है। वेंचर कैपिटलिस्ट आर रिवॉर्डेड बाय बिजनेस सक्सेस एंड द कैपिटल गेन। यदि इन्वेस्टेड अमाउंट और प्रॉपर ऑपरेशन, फंक्शनिंग, मैनेजमेंट प्रॉपर रहता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट को रिवॉर्ड मिलता है कैपिटल गेन पे। मतलब जो अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उस पर एज कैपिटल गेन ये रिवॉर्ड गेन करते हैं, दे गेट रिवॉर्ड। नाउ वेंचर कैपिटलिस्ट आर एबल टू ब्रिंग वेल्थ एंड एक्सपर्टाइज टू योर कंपनी। मान लीजिए आप अपनी कंपनी में किसी इस तरह से इन्वेस्टमेंट या कैपिटलिस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट का इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो वेल्थ और बिजनेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। सो वेंचर कैपिटलिस्ट आर एबल टू ब्रिंग वेल्थ एंड एक्सपर्टाइज टू योर कंपनी। कई बार जो उनका एक्सपीरियंस होता है, जो उनका नॉलेज होता है, वो न्यूली एस्टैब्लिश्ड फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। Now the venture capitalist also has a wide network of contacts. कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट एक पर्टिकुलर जोन या एरिया में कभी इन्वेस्ट नहीं करते। इनका जो नेटवर्क होता है वो बहुत वाइड होता है। नॉर्मली
जब भी वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पूरे प्रोफाइल को वो स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने भी नीड अपनी रखी वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। वेंचर कैपिटलिस्ट वही इन्वेस्ट करते हैं जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस स्टार्टअप को फंड की रिक्वायरमेंट है, वो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड की रिक्वायरमेंट प्रॉपर वे में, यानी कि जिसको बिजनेस प्लान या बिजनेस प्रपोजल कहा जाता है, उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने रखता है। जब एक बार वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने या उनके पास बिजनेस प्रपोजल या बिजनेस प्लान आ जाता है तो उसको वो थोड़ा स्टडी करते हैं और उसके बाद उसको यदि अप्रोप्रिएट पाते हैं, अप्रोप्रिएट लगता है उन्हें, देन दे विल टेक इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस प्लान। नाउ इट इज इजियर टू सिक्योर फ्यूचर फंडिंग फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, किसी भी दूसरे सोर्स से फंडिंग लेना इसके माध्यम से इजी हो जाता है। The business is not obliged to repay the money and providing additional funds. These are the basic advantages of, or we can say these are the few advantages of venture capital. तो अभी तक हमने क्या कवर किया, एक बार देख लेते हैं। Till now, just need to know about the term venture. And venture capital. Now we'll discuss some disadvantages of venture capital. अभी एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए, हमें एडवांटेजेस से पता चला कि वेंचर कैपिटल किस तरह से, या वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो किस तरह से किसी भी स्टार्टअप के लिए हेल्पफुल होते हैं, और वेंचर कैपिटल का एडवांटेज किसी भी स्टार्टअप के लिए या किसी भी नए बिजनेस के लिए या न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंस होता है, या किस तरह से वो हेल्प करते हैं इनके बिजनेस को स्टैब्लिश होने में या रन होने में। Now there are some disadvantages of venture capital. Though having certain advantages, it has some limitations or disadvantages too. Lengthy and complex process होती है इसकी, needs detailed business plan, financial projection and etc. कोई भी इन्वेस्टर जिसको वेंचर कैपिटलिस्ट हम कह रहे हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्टार्टअप में लमसम अमाउंट तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसके फुल प्रूफ बिजनेस प्लान को वो समझ ले और उससे वो कन्विंस हो जाए। जब तक कि वेंचर कैपिटलिस्ट कन्विंस नहीं होते तब तक उनसे फंड अरेंज करना या फंड अवेलेबल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इसकी जो प्रोसेस है, यदि इस प्रोसेस को हम, या कोई भी जो स्टार्टअप है वो यदि होमवर्क करके और प्रिपेयर करके जाए तो ये जो प्रोसेस है ये लेंदी हो सकती है, बट उतनी ज्यादा इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस लेंदी तब हो जाती है क्योंकि हम बिना प्रिपरेशन के, बिना होमवर्क के, जब बिना बिजनेस प्लान के या बिना फुल प्रूफ बिजनेस प्लान के वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने या इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस की फंड की नीड को रखते हैं तो हमें आंसर मिलता है नो, या हमें डिनाई कर दिया जाता है। सो जितने भी स्टार्टअप हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपने फंड, अपने बिजनेस के लिए जो स्टार्टअप ले रहे हैं उसके लिए जो उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट है, तो बेटर ये है कि पहले हम अपने स्टार्टअप के लिए बेटर एक फुल प्रूफ बिजनेस प्लान तैयार कर लें, या अपने बिजनेस का एक प्रपोजल तैयार कर लें, और उस प्रपोजल के बेसिस पर हम वेंचर कैपिटलिस्ट से कॉन्टेक्ट करें। Then in the deal negotiation stage you will have to pay for legal and accounting fees. ये पता लगे कि जो बिजनेस का फुल प्रूफ बिजनेस प्लान होगा वो कन्विंस तभी कर पाएगा
वेंचर कैपिटलिस्ट को या इन्वेस्टर्स को, जब केवल बिजनेस प्लान नहीं, बिजनेस प्लान के बाद उस बिजनेस प्लान को, यानी कि हार्ड कॉपी में आपने बिजनेस प्लान बना लिया, बिजनेस प्लान को आपको डिलीवर करना होता है, शेयर करना होता है, बताना होता है, कन्विंस करना होता है। इसके बाद ही वो इन्वेस्टर्स जो है आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है। सो इन द डील नेगोशिएशन स्टेज, एक नेगोशिएशन की स्टेज आती है जब आपका बिजनेस प्लान इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, और फिर नेगोशिएशन की स्टेज आती है जहां पर आपकी जो नीड और डिमांड है वो, और वेंचर कैपिटलिस्ट कितना उसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, इसके बीच में जो नेगोशिएशन होता है, वहां हमें कुछ लीगल और अकाउंटिंग फीस पे करना होता है। सो इन द डील नेगोशिएशन स्टेज यू विल हैव टू पे फॉर लीगल एंड अकाउंटिंग फीस। तो इतना इजी नहीं होता है किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड को अरेंज करना। एक प्रॉपर फॉर्मल वे है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको पूरा करना होता है। देन इन्वेस्टर्स बिकम पार्ट ओनर्स ऑफ योर बिजनेस। कोई भी अपना सेव्ड अमाउंट या अपनी अर्निंग किसी भी नए स्टार्टअप में या बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसे उस लेवल का रिटर्न मिल रहा हो। सो इन जनरल, क्योंकि स्टार्टअप्स में, नए वेंचर्स में जबकि इन्वेस्ट कर दिया जाता है, रिटर्न बहुत लेट मिलता है, क्योंकि स्टार्टअप्स हैं, अभी फंड की रिक्वायरमेंट है, फंड को अप्लाई किया जाएगा, मार्केट में पेनिट्रेट करने में, मार्केट में सर्वाइव करने में, एस्टैब्लिश होने में 3 साल 5 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इतने लंबे समय तक वेंचर कैपिटलिस्ट होल्ड करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को विदाउट रिटर्न। तो उस पूरे फेज में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, या उनका एक रोल मैनेजमेंट में या ऑनरशिप में रहे। सो इन्वेस्टर्स बिकम पार्ट और ऑनर्स ऑफ योर बिजनेस। वो बाय डिफॉल्ट आपके बिजनेस के, आपके स्टार्टअप के पार्ट बन जाते हैं यदि वो फुल इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यदि पार्टली भी करते हैं, मान लीजिए कि 100% फंड की रिक्वायरमेंट है, से सपोज 1 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है सपोज, और अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपीस आपने अरेंज कर लिए कहीं से, 80 लाख अभी भी अरेंज नहीं हुए, तो 80 लाख वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो साइमल्टेनियसली वो आपके स्टार्टअप के ऑनर भी बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें अभी रिटर्न, मतलब जो इन्वेस्टेड अमाउंट 80 लाख रुपीस, उस पर रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला, एटलीस्ट 3 to 5 years। ये एक्सपेक्टेड फिगर है। इसमें ये वेरी करता है। कुछ स्टार्टअप्स बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो जाते हैं, बहुत जल्दी मार्केट में स्टैब्लिश हो जाते हैं, रन होते हैं, और कुछ स्टार्टअप को बहुत ज्यादा समय लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। सो डिसएडवांटेजेस वेंचर कैपिटल का ये है कि इसमें एक तो इसकी जो प्रोसेस है वो लंबी है, सेकंड इसमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, और थर्ड जब हम वेंचर कैपिटलिस्ट को से फंड अरेंज करते हैं तो वेंचर कैपिटलिस्ट हमारे बिजनेस में बाय डिफॉल्ट ऑनर बनते हैं। तो हमारी जो ऑटोनॉमी होती है, हमारा जो डिसीजन होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारे इन्वेस्टर्स से। हम फ्री डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, तो कहीं इसके एडवांटेजेस है, कहीं इसके डिसएडवांटेजेस हैं। यदि हम वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू फंड को अरेंज नहीं करते तो फिर हम लीगल, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या जो दूसरे और सोर्सेस है, वहां से यदि हम फंड अरेंज करेंगे तो वहां भी लेंथी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी, लेकिन फंड अरेंज होगा या ना होगा ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो these are some disadvantages of venture capital. Now कुछ स्टेजेस की जो अभी हमने बात की थी, इस तरह से फंड प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट। नॉर्मली वेंचर कैपिटलिस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो स्टार्टअप्स को या प्राइवेट सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। सो लेने वाला भी प्राइवेट सेक्टर का है और देने वाला भी प्राइवेट सेक्टर का है, मतलब जो जिसको नीड है फंड की वो भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो प्रोवाइडर है वो भी प्राइवेट सेक्टर है। सो हियर आर सम स्टेजेस एंड रिस्क ऑफ
फाइनेंसिंग। यदि हम इस चार्ट को देखें, हम समझ पा रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल स्टेजेस होती हैं जहां पर फंड की रिक्वायरमेंट होती है और रिस्क का लेवल अलग अलग होता है। यदि हम सीड मनी की बात करें, सीड मनी का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक लेवल पर जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि केवल बिजनेस के लिए कोई आइडिया ही आया है या बिजनेस के लिए केवल स्टार्टिंग ही हो रही है, तो वहां सीड मनी की रिक्वायरमेंट होती है। और इस लेवल पर रिस्क बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि केवल अभी वो जो आइडिया है उसके लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। ओके, सो इसको और इजीली समझने के लिए एक और काम यूज करते हैं। बेसिकली आइडिया और मॉकअप के लिए जो आइडिया होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में जब कोई आइडिया आता है कि मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर सर्विस के लिए या प्रोसेस के लिए मुझे एक स्टार्टअप करना है, तो उस सर्विस या प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए स्टार्टअप का जो उसका आइडिया होता है वो उसको रियलिटी में लाता है। मतलब उसका जो इनोवेशन है वो इनोवेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इनोवेशन लेवल पर, इनोवेशन का जो स्टार्टिंग होता है उस लेवल पर जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बेसिक फंड चाहिए होता है, कोई आइडिया है उसको यदि हम रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक रफ जैसे प्रोटोटाइप बना रहे हैं या कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट है अरेंजमेंट की, उसके लिए जो फंड चाहिए वो नॉर्मली कोई स्टूडेंट है यदि वो यदि स्टार्टअप लेना चाह रहा है तो अपनी सेविंग से, पॉकेट मनी से, फैमिली से, फ्रेंड से, फैमिली में जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज जिनसे ब्लड रिलेशन होता है, उनसे फंड अरेंज हो जाता है। और ये जो फंड अरेंज होता है, ये फंड के लिए हम इस फंड को रीपे करने की जो रिस्क होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। बट फ्रेंड्स एंड फैमिली और इसी 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 फेज को बूटस्ट्रैप कहा जाता है। जबकि हमारा जो आइडिया है स्टार्टअप के लिए वो एक बेसिक आइडिया है और अभी हम रियलिटी में उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज जो होती है उसमें हमें एंजल इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, या एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे आइडिया को रियलिटी में जब कन्वर्ट करने या बेसिक जो स्टार्टअप है, जो हमारा स्टार्टअप बन जाता है, तो उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं। अभी हमारा कोई बिजनेस प्लान बना नहीं है, ठीक है, थोड़ा कोई बिजनेस प्लान अभी हमने नहीं डिजाइन किया है, लेकिन कुछ बेसिक हमने स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया है। उस लेवल पर जब हम फंड की नीड रखते हैं या जब हम फंड की डिमांड करते हैं, तो उस लेवल पर वेंचर कैपिटलिस्ट रोल प्ले नहीं करते, वेंचर कैपिटलिस्ट कभी हेल्प नहीं करते, या वेंचर कैपिटलिस्ट का वहां रोल नहीं होता। इस लेवल पर केवल एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स को एंजल इन्वेस्टर्स इसलिए कहा जाता है, सिंपल टर्म्स में हम समझें तो एक तरह के ये देवदूत के रूप में होते हैं। जब फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से फंड अरेंज नहीं हो पाता है या उनसे जितना फंड अरेंज हुआ वो इनसफिशिएंट है, एक्सेस अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है जो वेल्दी हो, जिसको आपके आइडिया में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, जो थोड़ी रिस्क ले सकता हो, वो आपके स्टार्टअप में इनिशियल लेवल पर जब इन्वेस्ट करता है, कोई भी एक्सटर्नल, तो उसको एक इंडिविजुअल व्यक्ति जब किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है तो उसको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। उसमें एक ही इन्वेस्टर होता है। लेकिन जब ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, कुछ लोग मिलकर जब एक फंड क्रिएट करते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी स्टार्टअप में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक हमने पॉइंट कवर किए, ये कुछ और पॉइंट्स हैं। इंडिया के ऐसे सिटीज जहां पर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स काफी मात्रा में है, काफी ज्यादा है, उसमें कुछ सिटीज के नाम है मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। ये कुछ ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं
जहां वेंचर कैपिटलिस्ट अवेलेबल हैं और ये किस पर्टिकुलर बिजनेस में, किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सेक्टर्स भी यहाँ मेंशन है, लाइक सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बीपीओ, मीडिया, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशंस, फाइनेंस एंड बैंकिंग। इन सेक्टर में मुंबई जो एक सिटी है वहां वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं या इसका रेशो ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्टर में नहीं करते, लेकिन यहाँ मेजोरिटी ज्यादा है। बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर में आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी में वेंचर कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट दिखाते हैं। दे आर मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दीज टू सेक्टर्स इन बैंगलोर। दिल्ली की बात करें तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड टेलीकॉम में, चेन्नई में आईटी एंड टेलीकॉम, हैदराबाद में आईटी एंड आईटीज एंड फार्मास्यूटिकल्स, एंड पुणे में बायोटेक्नोलॉजी, आईटी एंड बीपीओ। यदि हम इंडस्ट्री वाइज सेगमेंट देखें तो वेंचर कैपिटल जो है वो 27.95% जो है वो आईटी एंड आईटीज में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स होंगे, हम ऐसा कह लें कि मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स हैं उन स्टार्टअप्स में आईटी एंड आईटीज हैं जिनको फंडिंग इजीली अवेलेबल हो गई ड्यू टू देयर इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव अप्रोच, सम इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज। परसेंटेज में देखें तो सेकंड नंबर पर 12.92% विच इज टेलीकॉम। इस सेक्टर में वेंचर कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग their money into the organizations or business. Now, basically, यदि वेंचर कैपिटल फंडिंग इंडिया में किस तरह से हो रहा है या इंडिया में कैसे अवेलेबल है वेंचर कैपिटल फंडिंग, उसके कुछ लेवल्स या स्टेजेस हैं, वो हम देख लेते हैं। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यदि हम स्टार्टअप हैं, हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और फंड की रिक्वायरमेंट है हमारी, हम फंड अरेंज करना चाहते हैं, तो किस लेवल से हम फंड को अरेंज कर सकते हैं और सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या डिफरेंट लेवल पर हमें किस तरह से हेल्प मिल सकती है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। नाउ VCFs यानी कि वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 5 ग्रुप्स। 5 ग्रुप हैं इसमें। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड डेवलपमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल डेवलपमेंट, थर्ड पब्लिक बैंक्स, फोर्थ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, एंड फिफ्थ ओवरसीज वेंचर कैपिटल फंड। So it means सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सेटअप्स हैं जो वेंचर कैपिटल के लिए, जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए वेंचर कैपिटल किस तरह से अवेलेबल हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ बैंक्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेंट्रल लेवल पर फंड को प्रोवाइड करती हैं, जिसमें ICICI वेंचर फंड्स लिमिटेड है, IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड है जिसको IVCF कहा जाता है, एंड SIDBI विच इज SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल लेवल पर वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए ऑथराइज्ड है। सो दे आर अवेलेबल, these 3 are available for national level venture capital fund. For state level और यदि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेट लेवल पर लाइक देयर आर डिफरेंट स्टेट्स। सो पंजाब में पंजाब इन्फोटेक एंड वेंचर फंड वर्क कर रहा है, गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड है गुजरात में, केरला में केरला वेंचर कैपिटल फंड प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल डेवलपमेंट फंड या वेंचर कैपिटलिस्ट अवेलेबल है। Now,
थर्ड लेवल जो कि पब्लिक बैंक्स कहलाता है, दोज प्रमोटेड बाय पब्लिक बैंक्स लाइक कैनरा बैंक वेंचर कैपिटल फंड एंड एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड। ये पब्लिक बैंक्स हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि पब्लिक बैंक की बात करें, गवर्नमेंट बैंक की बात करें, तो ये भी कुछ लेवल पर हमें सपोर्ट करते हैं। नाउ दोज प्रमोटेड बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कौन सी हैं? IL एंड FS ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड एंड इन्फिनिटी वेंचर इंडिया फंड। ओवरसीज वेंचर कैपिटल फंड की बात करें, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, तो कुछ एग्जांपल में यहाँ पर हैं। गोल्डन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप इज देयर, HSBC प्राइवेट इक्विटी इज देयर एंड मैनेजमेंट मॉरिशस लिमिटेड। ये कुछ नाम हमारे सामने हैं जो ओवरसीज वेंचर कैपिटल फंड जहां से हम रेंज कर सकते हैं। सो वेंचर कैपिटल के लिए ओवरऑल केवल एक पर्टिकुलर प्लेस पर कोई अवेलेबल नहीं है कि बस इसी जगह पर हमें वेंचर कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड के लिए अलग अलग लेवल पर ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं जिनसे हम फंड की हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। नाउ वी आर ऑन द इनिशियल क्वेश्चंस। जितना भी हमने डिस्कस किया इसमें वेंचर के बारे में हमने जाना, वेंचर कैपिटल के बारे में जाना, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है या वेंचर कैपिटल के जो फीचर्स हैं इनको जानने की कोशिश करी। कुछ मेथड्स हैं वेंचर कैपिटल फंड की, इसको देखेंगे। देन वेंचर कैपिटल फॉर फंडिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस को देख लेते हैं। और एंड टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने कवर किए हैं, इसको देख लेते हैं। दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल को अरेंज करने के लिए या वेंचर कैपिटलिस्ट जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड प्रोवाइड करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, किस प्रोसेस से ये फंड प्रोवाइड होता है। So there are basically 4 steps. Step 1 is idea generation and submission of the business plan. सबसे पहले आइडिया का जनरेशन होता है, आइडिया जनरेट होता है और बिजनेस प्लान को सबमिट किया जाता है टू वेंचर कैपिटलिस्ट। So the initial step in approaching a venture capital is to submit a business plan. जैसा अभी डिस्कस किया था, बिजनेस प्लान एसेंशियल है। विदाउट बिजनेस प्लान कोई वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी वेंचर में, किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि बिजनेस प्लान में बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड ओवरऑल डिटेल होती है। लाइक बेसिक जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है, उसमें स्टार्टअप क्या है, ऑनर कौन है, स्टार्टअप का विजन मिशन क्या है, स्टार्टअप से बेनिफिट क्या है सोसाइटी को, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, उस फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, फ्यूचर रिटर्न्स क्या हैं, पूरा जो प्रोफाइल है बिजनेस का वो बिजनेस प्लान में दिया होता है। सो द प्लान शुड इंक्लूड द बिलो पॉइंट्स। देयर शुड बी एन एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द बिजनेस प्रपोजल। इस बिजनेस प्रपोजल यानी कि बिजनेस प्लान में एक एग्जीक्यूटिव समरी होती है, जिस एग्जीक्यूटिव समरी में डिटेल होती है कि पूरे बिजनेस को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, और उसकी जो डिटेल है वो उसमें एग्जीक्यूटिव समरी में दी हुई होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड द मार्केट पोटेंशियल एंड साइज, रिव्यू ऑन द existing and the market potential and size, review on the existing and expected competitive scenario, detailed financial projection, details of the management of the company. These are the basic information, or we can say essential information covered in business plan. So business plan के सबमिशन के बाद जो स्टेप आती है वो आती है इंट्रोडक्टरी मीटिंग। बिजनेस प्लान प्रिपेयर करके बिजनेस प्लान को सबमिट कर दिया जाता है जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनके पास, थ्रू मेल, फिजिकल और ईमेल। ठीक है, जब हम अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट कर चुके होते हैं, जैसे हम एक अपने आप को स्टार्टअप मान लें
तो जो भी हमारा बिजनेस प्लान है, उस बिजनेस प्लान को जब हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने हम प्रेजेंट कर देते हैं, तो एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग होती है। उस इंट्रोडक्टरी मीटिंग में once the preliminary study is done by the VC, एक जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो उस बिजनेस प्लान की थोड़ा स्टडी करते हैं, और एक बार उस बिजनेस प्लान को रीड करने के बाद में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। फाइंड द प्रोजेक्ट एज पर देयर प्रेफरेंसेस। यदि उन्हें लगता है कि ये नया कुछ आइडिया है, इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, कुछ इंटरेस्ट उन्हें दिखाई देता है, उसका जो फ्यूचर है वो असेस कर पाते हैं, तो एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग रखी जाती है। यदि बिजनेस प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है या बिजनेस प्लान से वो कन्विंस नहीं हो पाते हैं, तो फिर सेकेंड स्टेप तक स्टार्टअप नहीं जा पाते। तो बिजनेस प्लान जितना बढ़िया होगा, जितना बिजनेस प्लान आपका क्लियर होगा, उतना ही आपकी सेकेंड लेवल की जो मीटिंग है या जो सेकेंड लेवल है, वहां तक कोई भी स्टार्टअप या वेंचर जा सकता है फॉर वेंचर कैपिटल फंडिंग। There is a one-to-one meeting that is called for discussing the project in detail. one-to-one मीटिंग होती है जैसे इंटरव्यू होते हैं, ठीक उसी तरह से कि जो भी ऑनर है, जिसका भी स्टार्टअप है, जिसका भी आइडिया है, वो अपने आइडिया को विद प्रॉपर बिजनेस प्लान वेंचर कैपिटलिस्ट को कन्विंस करता है। उसे बिजनेस प्लान को डिटेल में समझाना होता है कि मैंने इस बिजनेस प्लान में क्या और क्यों और कैसे इंक्लूड किया है, और मैं इस बिजनेस प्लान को, क्योंकि प्लान है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, तो उस फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसके लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट को कन्विंस करना कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे या हम कर पाएंगे, इसके लिए कन्विंस किया जाता है। तो मीटिंग होती है जिसमें जिसका मेन आइडिया होता है, जो ऑनर होता है, जो स्टार्टअप लेता है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बिजनेस प्लान से वेंचर कैपिटलिस्ट को कन्विंस कर पाए। So after the meeting, the VC finally decides whether or not to move forward to the due diligence stage of the process. यदि वेंचर कैपिटलिस्ट कन्विंस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि बिजनेस प्लान केवल टेक्स्ट में या अच्छे से डेकोरेट करके बनाकर नहीं दिया गया, उसके पीछे पूरी थीम है, पूरे एफर्ट लगाए गए हैं, और जो ऑनर है उसका एंथुसियाज्म और उसका कॉन्फिडेंस और उसकी जो स्पिरिट है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद में यदि वो कन्विंस हो जाते हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट फिर थर्ड लेवल पर इस प्रोसेस को ले आते हैं, जिसको कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब हुआ द ड्यू डिलिजेंस फेज वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस प्रपोजल। अभी डिपेंड करेगा बिजनेस प्रपोजल कैसा है, मतलब कितना बड़ा अमाउंट उस वेंचर के लिए रिक्वायर्ड है। कोई स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसी के अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा, नेगोशिएशन किया जाएगा। यदि बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे मैंने अभी हमने एग्जांपल लिया था, 80 लाख रुपीस का यदि इन्वेस्टमेंट चाहिए और 80 लाख रुपीस की फंडिंग हम चाह रहे हैं, तो उस लेवल का प्लान और हमारी कन्विंसिंग होना चाहिए, और जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसका इंटरेस्ट उसमें यदि होता है, तो फिर फंडिंग की प्रोसेस आगे जाती है। सो द ड्यू डिलिजेंस फेज वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस प्रपोजल। This proposal involves solving of queries related to customer preferences. यहाँ वेंचर कैपिटलिस्ट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज इन्वेस्टर नहीं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझकर और फिर उस प्लान को और इलैबोरेट करते हैं और डायग्नोज करते हैं उसको कि किस तरह से कस्टमर तक ये चीज पहुंचेगी। कस्टमर, क्योंकि मेन जो रिटर्न मिलेगा, जितना भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, बिजनेस प्लान अपनी जगह है, जिसका आइडिया है वो अपनी जगह है, लेकिन ओवरऑल फाइनली ये जो बिजनेस प्लान और ये जो आइडिया है, ये इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं कर रहे हैं, उन पोटेंशियल कस्टमर के लिए भी कर रहे हैं, जो कि उस बिजनेस के होने वाले कस्टमर या कंज्यूमर है। तो जब तक कस्टमर या कंज्यूमर कन्विंस नहीं हो, तब तक बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट और ग्रोथ के बारे में कोई भी जजमेंट लगाना गलत है। सो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेंचर कैपिटलिस्ट इसको और एनालाइज करते हैं।
So the due diligence phase varies depending upon the nature of the business proposal. The process involves solving of queries related to customer references, product and business strategy evaluation, management interviews, and other such exchanges of information during this time. So ड्यू डिलिजेंस की स्टेज जब एक बार क्रॉस होती है तो लास्ट स्टेज आ जाती है टर्म शीट्स एंड फंडिंग। अगले टर्म शीट्स और फंडिंग क्या है? ये वो स्टेज है जहां पर के इन्वेस्टर यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट रेडी है वेंचर को यानी कि स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड करने के लिए। So if the due diligence phase is satisfactory, the VC, this means venture capitalist, offers a term sheet which is a non-binding document explaining the basic terms and conditions of the investment agreement. So term sheet का मतलब क्या हुआ? एक investment agreement कि हम आपके बिजनेस में इन टर्म्स और कंडीशंस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आप फुलफिल करेंगे और रिटर्न हमें इस लेवल से मिलता रहेगा। ठीक है, सारी टर्म्स और कंडीशन जो वेंचर कैपिटलिस्ट फ्रेम करते हैं वो साइन करना होती है, वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप के बीच में होता है। इस एग्रीमेंट के बेसिस पर ही फंडिंग की जाती है। सो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, द टर्म शीट इज जनरली नेगोशिएबल and must be agreed upon by all parties. अब मान लीजिए कि जो इन्वेस्टर है उसने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बना दी। हर इन्वेस्टर चाहेगा कि उसे कम से कम इन्वेस्ट करना हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, whereas जो इन्वेस्टमेंट ले रहा है जिसको रिक्वायरमेंट है फंड की, वो ये चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा फंड मिले लेकिन उसे रीपे कम से कम करना पड़े। तो यहाँ एक लेवल पर कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होता है। जब दोनों पार्टी कन्विंस हो जाती है, एक दूसरे को कन्विंस कर लेती है, एग्रीमेंट दोनों के बीच में डन हो जाता है, तो उस लेवल पर फिर फंडिंग के प्रोसेस आगे जाते हैं। सो द टर्म शीट इज जनरली नेगोशिएबल एंड मस्ट बी एग्रीड अपॉन। यदि कहीं उस टर्म शीट में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इन्वेस्टी है जिसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो कहीं डिसएग्री करता है या उसे लगता है कि ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है, तो वो उन पॉइंट्स पर अपनी बात रख सकता है, उन पॉइंट्स को वो रिमूव कर सकता है या उसको चेंज करवा सकता है। तो जो भी म्यूचुअल दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो दोनों का जो एग्रीमेंट होता है वर्बल, जो रिटर्न पेपर पर जो एग्रीमेंट आ जाता है उसी को टर्म शीट कहा जाता है और ये नेगोशिएबल होती है। आफ्टर विच on completion of legal documents and legal due diligence funds are made available. तो लीगल जो प्रोसेस होती है फॉर्मली स्टैम्प पेपर पर इसको लिया जाता है क्योंकि लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। मोस्टली 2 से ज्यादा लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, कुछ लोग मिलकर फंड को अरेंज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों लेवल पर दोनों के लिए ही लीगल डॉक्यूमेंट ये एक एविडेंस, एक प्रूफ हो जाता है जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए, फंडिंग के लिए और जो इन्वेस्टी है उसके लिए भी एक प्रूफ रहता है कि मैंने कितना अमाउंट वेंचर कैपिटलिस्ट से लिया और किस तरह से मैं इसको रीपे करूँ। तो दीज आर द बेसिक 4 स्टेजेस और स्टेप्स फॉर वेंचर कैपिटल प्रोसेस। तो ये कुछ बेसिक प्रोसेस हैं। Now, this is hello. This is end from my side. I'm taking question and answer section now. तो आई होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। वी डिस्कस बेसिक पॉइंट्स। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। आई होप यू विल एंजॉय दीज क्वेश्चंस। सो आई नीड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन टू रिप्लाई दीज क्वेश्चंस।
Okay, if you find that any one of option is correct, you just put in the checkbox option number only. Option number 1, 2, 3, or 4. So if you find that option number 1 is correct for this question, please mention number, put number that digit only, number 1. If you find that 4 is correct, put 4 only. So let us see your participation. Okay, thank you. So this is the answer. Next is what is the full form of VCT? So these are some questions. Please attempt this question. Venture capital firms are usually organized as. So this is end from my side, sir. Any questions from the participants? पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आस्क. लिंक भी आपको शेयर कर दी गई है, फीडबैक लिंक जो है उसको आप यूज करके फीडबैक भरिए इस प्रोग्राम का. और कोई क्वेरी हो आपकी रिलेटेड टू वेंचर कैपिटल या और इससे रिलेटेड टॉपिक की कोई क्वेरी अगर हो तो प्लीज आस्क. टू पार्टिसिपेंट्स रेज देयर हैंड्स. हाँ, एक मिनट. Ashish, you can ask the Yes, question. sir. Ashish Sharma, you can ask the Yes, sir. question. Good afternoon, Dean. Good afternoon, sir. Good So my afternoon. sir, only one question is there कि इन्वेस्टर जो ओनर में उनका पार्टिसिपेशन होता है तो मिनिमम कितना होता है? मतलब मैक्सिमम तो दे टेक ऑल ओवर ओनरशिप इन हैंड, बट इन केस मैक्सिमम मतलब मिनिमम कितना हो सकता है पार्टिसिपेशन उनका? Okay, nice question. आशीष शर्मा जी ना? Yes. सी डिपेंड करता है, वेरी करता है वेंचर कैपिटलिस्ट टू वेंचर कैपिटलिस्ट. बट आप जो मिनिमम की बात कर रहे हैं तो ऐसा उसमें कुछ कंपलसरी नहीं है कि मिनिमम उनका पार्टिसिपेशन होगा. ये उनकी चॉइस होती है, उनकी वांट हो सकती है कि वो ऑनरशिप में पार्टिसिपेशन चाहें. हो सकता है कोई वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ऑनरशिप में मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन ना लें. इट डिपेंड्स. तो एग्जिट का क्या रहता है इसमें? अगर किसी से हमने फंडिंग्स ली है और इन फ्यूचर हम किस तरीके से उसको रीपे करने के बाद हम उसमें से किस तरीके से उस बॉन्ड से एग्जिट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. एग्जिट के लिए प्रोसेस ये है कि
नॉर्मली मैं आपके स्क्रीन पर ले आता हूँ पहले, रुक कीजिएगा। ये आप देख पा रहे हैं एग्जिट रूट? हेलो, यस यस। एग्जिट रूट के लिए नॉर्मली इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू, ट्रेड सेल के थ्रू, प्रमोटर बाय बैक के थ्रू और एक्विजिशन बाय अनदर कंपनी, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो एग्जिट हो सकते हैं। इट मींस तो सर इसमें मतलब जो हमारी टर्म शीट बनती है, दैट टाइम ये फाइनल होता है या मान लो पहले से कंफर्म होता है? ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए, मान लीजिए 10 इयर्स के लिए हमने इन्वेस्ट किया या वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्ट किया और 10 इयर्स के बाद में वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस तरह से एग्जिट होंगे। जिस तरह से एंट्री के लिए, एंट्रेंस के लिए इनिशियल लेवल पर ही क्लैरिटी होती है, ठीक उसी तरह से एग्जिट के लिए भी इनिशियल लेवल पर ऑन दैट एग्रीमेंट ये क्लैरिटी रहती है कि किस तरह से एग्जिट हो। ओके सर। बाद में हो सकता है कि आफ्टर दैट और कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड और सेशन, जो भी ड्यूरेशन हो उसके, उस समय हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, बट एग्जिट रूट ऑलरेडी क्लियर रहता है, उसमें कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं। ओके सर। बट ये पहले से डिसाइडेड, इट इज प्री डिसाइडेड। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, एक और क्वेश्चन था शायद। शिव कुमार सिंह सर, अनम्यूट कर रही हूँ मैं इनको। हाँ, शिव कुमार सिंह। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर, एक्चुअली माय क्वेश्चन इज कि अगर सर हम किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को अपना प्लान बताते हैं एंड दे रिफ्यूज कि दे डोंट इन्वेस्ट इन इट एंड देन दे स्टार्ट द प्लान बाय देयर ओन, लाइक हमको इन्वॉल्व नहीं करके अगर वो खुद स्टार्ट कर लेते हैं वही सेम प्लान, तो व्हाट कैन वी डू इन दैट केस? शिव कुमार, आई थिंक यू आर सेइंग दैट हमारे प्लान को वो खुद उस पर वो वर्क करने लगे, लाइक ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद? यस यस, और हमको इन्वॉल्व नहीं कर, तो सर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो ये यहाँ ये जो, हेलो, यस सर। हाँ, ये पॉइंट ये है, जैसे आप बिजनेस प्लान जब किसी के सामने रखेंगे, ऐसा होता है नॉर्मली कि जब हम अपने कोई भी स्टार्टअप करते हैं और बिजनेस प्लान बनाते हैं, तो इट हैपेंस कि आप केवल एक वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने नहीं अपने फंडिंग की रिक्वायरमेंट को रखते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने किसी एक वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने अपने बिजनेस प्लान को रखा और वो एग्री करेंगे, हो सकता है वो डिसएग्री करेंगे। ठीक है, जब हम बिजनेस प्लान प्रेजेंट करते हैं किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने, तो बिजनेस प्लान हमारे लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, बिजनेस प्लान हमें, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, बिजनेस फुल प्रूफ बिजनेस प्लान हमें प्रेजेंट करना होता है। तो बिजनेस प्लान जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने, वो बिजनेस प्लान हमारा है या किसी और का, ये हम कैसे डिफेंड कर पाएंगे, इसको हम कैसे डिफेंड करेंगे? तो हम उसको किस पर लेते हैं? लीगल पेपर्स पर हम उसको लेते हैं। बिजनेस प्लान जब भी प्रिपेयर होता है तो ऐसा नहीं कि हमने ब्लैंक पेपर पर बिजनेस प्लान बना दिया और सबमिट कर दिया। Are you getting me? हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है, तो यदि हम किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को लीगल तरीके से यूज कर रहे हैं और सामने वाला यदि उसको मिसयूज कर रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। Am I clear? ओके सर, यस सर। जी के शर्मा सर, थोड़ा सा मैं इस पे और क्लियर कर दूं। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, एक्चुअली शिव कुमार, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी वेंचर कैपिटल फर्म के पास इतना टाइम नहीं रहता है किसी स्टार्टअप को चलाने के लिए। दे आर बिजी विद मतलब इन्वेस्टमेंट इन सो मैनी कंपनीज। तो अगर आप किसी स्टार्टअप के फाउंडर हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका आइडिया जो है कोई चुरा लेगा, ऐसा कभी नहीं होता है।
और सर नॉर्मली एक्चुअली वन हाँ ऑफ माय फ्रेंड्स डिड दैट एंड सर उसके साथ ऐसा हुआ था, ऑल्दो प्लान फेल्ड बट उसके साथ ऐसा हुआ था, दैट्स व्हाई। क्योंकि क्या होता है कि आप फाउंडर हो ना, तो यू नो द एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपकी स्टार्टअप का क्या यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, ये आप जानते हो, आपका वो वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं जानता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि मतलब आपने आपने पिच डेक मतलब तैयार किया और गए 4 फर्म के पास, वो किए और वो आपका आइडिया चुरा ले। तो फिलहाल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड ना, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं है वो स्टार्टअप चलाने की। रिक्वायर्ड स्किल तो आपके पास है, तो वो कैसे चला सकते हैं आपके स्टार्टअप को। हाँ, दे आर एक्सपर्ट इन इन्वेस्टिंग द मनी ओनली, बस और कुछ नहीं रहता है वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा शिव। Yes sir, yes sir, sure. And sir, one more question. Where can we pitch our plan? Like कोई इवेंट होगा सर कॉलेज में ऐसा, या फिर? हाँ हाँ होगा ना, अभी हम अगस्त में प्लान कर रहे हैं, तो आप अगस्त तैयार में? रखो, और उसके बाद भी हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर पे हमें वो करो, हम आपको जो भी हेल्प रहेगी, जैसा भी रहेगा वो हम आपको करेंगे। ठीक है, हमें Yes sir. So इंक्यूबेशन actually, सेंटर में हाँ कांटेक्ट करो आप। I have the plan, I have the product, but sir product उतना ready नहीं है जितना होना चाहिए. So will I get some help from somebody? हाँ हाँ हाँ, आप हमें कांटेक्ट करो, हम आपको टाइम देंगे, आपका प्रेजेंटेशन सुनेंगे, और वी कैन सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। हाँ, अब अलीस अवस्थी शायद, आई थिंक। यस सर। तो शिव कुमार, आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड नाउ। सर का जो रिप्लाई है वो शायद आपको क्लियर हुआ होगा, बट आई गॉट योर क्वेश्चन कि हाँ, यदि इस तरह से होता है, यदि कहीं जिसको हम फ्रॉड कह सकते हैं, तो वो चांसेस कम होते हैं, लेकिन यदि कहीं कहीं ऐसा है भी और हो भी रहा है, तो बेटर ये होता है कि किसी के साथ यदि ऐसी चीटिंग ना हो, तो बेटर ये है कि वो पहले ही अपने बिजनेस प्लान को लीगल पेपर्स पर लेकर रखे सामने। क्योंकि ऐसा होता है, आइडिया इसीलिए, जैसे अभी आपके सामने भी क्वेश्चन दिमाग में होगा कि सर हम अपना आइडिया शेयर करें तो उसकी क्या गारंटी है, या ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी के लिए MIIC और ई-सेल आप जरूर कांटेक्ट करें किसी भी फैकल्टी से, या रामधरम सर से, या डॉक्टर कंसल मैडम से आप जरूर कांटेक्ट कर लें इसके रिगार्डिंग। आपकी कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग योर स्टार्टअप और एनी 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 काइंड ऑफ क्वेरी ऑफ योर स्टार्टअप, आप जरूर कांटेक्ट कर लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन वी मे टेक फ्रॉम एलिस। बहुत टाइम से इसने हैंड रेज कर यस रखा मैम, है यस सर। अलीश, यस मैम। एलिस प्लीज। Thank you, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Sir, generally, which is a safer and better option, government capital funding or private funds? ओके, सो इट डिपेंड्स। देखिए, कुछ सेफर भी हो सकता है, पर उसमें समय लग सकता है। तो यहाँ हमारे स्टार्टअप के लिए हमें ये देखना होगा कि हमें कितनी जल्दी फंड की रिक्वायरमेंट है। हम कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हैं। आपने जैसे पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा या सुना होगा, तो डिपेंड करता है हम किस तरह से फंड को अरेंज करना चाह रहे हैं, या हम कितनी जल्दी फंड को अरेंज करना चाह रहे हैं। क्योंकि यदि हम लीगल या गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, हालांकि वेंचर कैपिटलिस्ट की भी प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, लेकिन फिर भी ये एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट उतनी लेंदी नहीं होती है। यहाँ हमें केवल अपने बिजनेस प्लान के बेसिस पर कन्विंस करना होता है हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट। हेलो अलीश, एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes sir, you are very much audible. You are very much audible. अलीश is not there. अलीश में भी शायद वो Disconnect. डिस्कनेक्ट हो गया। आशीष शर्मा, आपका वापस कुछ क्वेश्चन है क्या? आशीष शर्मा, any other questions? चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर भी ड्रॉप किया हुआ है। अगर शिव कुमार जैसे स्पेशली कांटेक्ट करना चाह रहे थे, या और भी कोई लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, दे में कॉल। मैम, अलीश इज देयर इन यस द यस लिस्ट। आलिश।
Yes, sir, I got that. Sir, generally private firms take ownership in shares. So does that apply to government ones as well? No. Okay, sir. For startups, you are asking, no? Yes, sir. No. Okay, sir. Thank you, sir. Any more questions? Okay, so I think there are no further questions. Yes, sir. So, very good afternoon to one and all. I am Sanjay Jathar here to present the vote of thanks to acknowledge the efforts of all those who have contributed to this webinar. For any company or startup, funds availability is important to meet not only initial investment but also to meet day-to-day expenses. A venture capitalist is a company which provides funds to a startup or organization. Today's speaker, Professor G.K. Sharma, very well explained venture capital, pros and cons of venture capital, the process of availing venture capital, the stages involved, and the sources of venture capital. Why a venture capitalist should invest in your business? So this is the main question which he also addressed. On behalf of Medicaps University and MIIC, I would like to thanks Professor G.K. Sharma for this very wonderful session on venture capital. On behalf of Medicaps Innovation and Incubation Cell, I sincerely thanks Honorable Vice Chancellor Dr. D.K. Patnaik for his guidance and motivation to organize this webinar. His vision inspires us to work hard consistently. I also sincerely thanks Honorable Pro Vice Chancellor Dr. D.K. Panda for his support and motivation for the event. Thanks to Dr. Pradyuman Yadav, Registrar Medicaps University, for all-round support which lead to smooth conduction of this webinar. I also thanks Dr. Sarita Kansal, Head MIIC, and Professor Ramjanam Singh, Head eCell, for all their support to organize this webinar. I also thanks all the members of MIIC for their support. Sincere thanks to the members of supporting team, Mr. Surikant Soni, Ms. Payal Somani, and Mr. Gajendra Singh for their backend support. And at the last, I would like to thanks all the participants who made this webinar successful by actively interacting with the speaker. So I hope all of you might have understood the concept of venture capital and will keep a thought in your mind of starting your venture. So good day to all the participants, and thanks Professor G.K. Sharma once again. Thank you, sir, for your kind words. I also want to thank my sincere thanks to the Honorable VC Professor Dr. D.K. Patnaik, sir, Pro VC Professor Dr. D.K. Panda, sir, Registrar Dr. Pradyuman Yadav, sir, Dean Management and Commerce Dr. Bapat, sir, Head MIIC Dr. Saita Kansal, madam, and all the respected dignitaries for giving me such a wonderful opportunity to explore myself. My special thanks to all the participants of this session for their active participation, and to Professor Ramjanam Singh sir for their kind support always. Thank you all. Take care of yourself. See you. Goodbye. So I hope all of you have filled the feedback form. I hope you have copied the link. So I am closing this webinar. End कर दूं मैडम? जी जी सर. Okay, thank you.